Now, it is well known that living close to nature makes life more sustainable, and this way of life gives rise to such knowledge types called folk knowledge. And it includes a knowledge system related to forest production, collection, hunting, animal husbandry, agriculture, craft, and medicinal use of flora and fauna. And today's speaker, Mr. Saurabh Yadav, will highlight how tribes use their folk knowledge in managing and sustainably conserving natural resources. So, without any further ado, let's invite today's speaker, Mr. Saurabh Yadav from Central University of Haryana, the Department of Geography. And today he will be uh, giving his presentation on the topic geofocusm and sustainable practices for and religious practices for sustainable development. So, Mr. Saurabh, now the stage is all yours. Is my voice is audible? Yes, your voice is audible and your screen is visible. Yes. A very good afternoon to all the respected dignitaries present at this digital platform. First of all, I would like to thank our guest of honor and Professor Monica Dara ma'am, Professor Seema Sahdev ma'am, and Dr. Manish Karamwal sir, who motivate me to present my thoughts at this digital platform. I, Saurabh Yadav, am a graduate scholar from School of Humanities and Social Science from IIT Mandi, and currently I am pursuing my master's from Central University of Haryana. And I also would like to thank our eminent research scholars Ajay Kumar Meena and Ravidas Bishnoi, who motivate me to present my thoughts at this digital platform. So, my topic for this talk is Zeopokism and religious practices for sustainable development. So, at very first, I would like to discuss Zeopokism with you. So, Zeopokism, this is contains three words, that is Zeo, folk, and ism. This geo word specifically denotes here geography or a geolocality or any region, or simply in very simple terms, it denotes the earth. The term folk. Folk basically denotes here with like any particular community or group that shares a common interest or common factor. That factor may be any occupation, a religion, any their ritual, language, etc. Our this GSTS team and these GSTS members are also considered as the example of folk. And ism is used as the word used as suffix, which simply denotes the ideologies, belief system, or any movements. So zeofolkism, in very layman word, is simply a folklore of any geolocality or geography. We are all aware about the term religious practices. This is a very simple practice that mainly involves the worshipping of god, goddesses, sacrifices, festivals, any type of music, art, or dance that simply relates the religion. With this word sustainable development, simply in very simple words, it is the development that meets the needs of the present without compromising the future generations needs, or conserving the or protecting the natural resources for the upcoming generations. So this is a very simple or brief idea of geofocusm and religious practices for sustainable development. So in this talk, I will try to address give an idea how oral traditions and religious practices, with the help of traditional knowledge, helps in the sustainable development. And I will try to establish a relation between geofocusm, religion, and sustainable development with the help of oral history. Oral history is simply the knowledge that passes from generations to generations, simply the folklore of any area, and will try to show the socio-cultural dimensions and provide a sustainable solution to the modern predicaments of the development. So I will start with folklore. फोकलोर, जिसको हिंदी में हम लोक साहित्य कहते हैं, एक तरीके से जो हमारा आम जनजीवन है, उसकी जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं, रिचुअल्स हैं, हमारा पहनावा है, हमारा खान पान है, क्लास में एक दूसरे दोस्त के साथ बैठकर की गई बातें, जॉक्स क्रैक करना, ये सभी हमारा जो है फोकलोर का पार्ट है.
फोकलोर सिंपली जो है एक तरीके से एक नेशन को भी शो करता है कि किस तरीके का वहां पे जो है पहनावा है, वहां पे चाल चलन किस प्रकार का है। सिंपली अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं हरियाणा का, तो जो हरियाणा के अंदर जो यहाँ के फोक सॉन्ग्स हैं, जैसे कि जो है रागनी, जो कि एक तरीके से उस कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, उस एरिया की जो भी रिचुअल्स हैं उनको सॉन्ग्स के माध्यम से प्रेजेंट करते हैं, तो वो सिंपली एक फोकलोर जो है होता है। और सिंपली एक तरीके से अगर हम देखें, जो फोकलोर है ये बहुत ही लोकल जो हमारी थिंग्स होती हैं, अगर कॉम्प्लेक्स सिविलाइजेशन से मॉडर्न हम सिविलाइजेशंस के साथ अगर इसको कंपैरिजन करते हैं, तो जो फोकलोर है उसको बहुत ही लो लेवल के ऊपर जो है देखा जाता है। इसी के साथ जो जियोफोकिज्म है, मैं उसको एक एग्जाम्पल के साथ आप सभी के साथ मैं जो है रखना चाहूंगा। हम सभी ने देखा होगा जो हमारा कल्चर है, जैसे कि जो हमारे गांव के अंदर आज भी जो भी कोई हमारा रिचुअल होता है, जिसके अंदर जो भी कोई फूड सेरेमनी होती है, कोई पार्टी होती है, उसके अंदर जब गांव में जो चाल चलन हम देखते थे कि एक तरीका होता था जो प्लेट्स का हम यूज करते थे। तो इसी का मैं दो एग्जाम्पल देना चाहूंगा, राजस्थान के करौली डिस्ट्रिक्ट और दौसा डिस्ट्रिक्ट का, और इसी के साथ साथ हिमाचल के सोलन डिस्ट्रिक्ट का, जिसके अंदर जो है जो सर्विंग प्लेट्स हैं हमारी, वो ग्रीन लीफ से बनी हुई जो है यूज की जाती हैं। और एक दूसरा उनका रिचुअल होता है जिसके अंदर जो ड्राई लीव्स से बनी हुई जो सर्विंग प्लेट्स हैं वो जो है यूज की जाती हैं। तो जो सर्विंग प्लेट जो ग्रीन लीफ से बनी हुई होती हैं, वो जो भी वेलकमिंग सेरेमनीज होती है, जैसे गृह प्रवेश हो गया, कोई प्रसाद वितरण समारोह हो गया, कोई भजन पाठ हो गया, भजन कीर्तन हो गया, उसके अंदर वो लोग जो है ग्रीन लीफ से बनी हुई जो प्लेट्स हैं उनको वो लोग यूज करते हैं। और जो कोई फेयरवेल हो गया, डेथ सेरेमनीज का जो ब्रह्म भोज जो है हो गया, उसको उसके अंदर वो लोग जो है ड्राई लीव से बनी हुई प्लेट्स का वो लोग जो है यूज करते हैं। तो एक इस रिचुअल के साथ वो एक क्लियरली एक मैसेज शो करना चाहते हैं कि जो हमारा रिचुअल है वो आज भी, जो हमारी कम्युनिटी है आज भी, वो नेचर के साथ बहुत ज्यादा जो है अटैच है। जिसका हम इंस्टेंस देख सकते हैं, जैसे बसंत ऋतु आती है तो जो हमारा नेचर है, जो जो भी हमारी बायोडाइवर्सिटी है, वो बिल्कुल हमें हरी भरी दिखती है, एक तरीके से वो वेलकमिंग जो है मैसेज देना चाहती है। तो उसी प्रकार से वो लोग दिखाना चाहते हैं कि हमारे रिचुअल के माध्यम से हम एक वेलकमिंग जो है नेचर के साथ कनेक्ट करके ये हम अपना रिचुअल से शो कर रहे हैं। और जिस तरीके से जो पतझड़ का मौसम आता है, जहाँ जो पत्ते होते हैं अपने आप को पेड़ों से अलग कर लेते हैं, उसी तरीके से वो बताना चाह रहे हैं कि जो करंटली जो सोल है, जैसे अगर वो जा रही है किसी को फेयरवेल देना है, तो उसके अंदर जो हम ड्राई लिव से जो बनी हुई प्लेट्स हैं उनको हम जो है यूज करते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक तरीके से वो नेचर लिविंग है, कि नेचर से जो प्रोडक्ट्स उन्हें मिल रहे हैं उनको वो जो लोग है यूज कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो ये नेचर के साथ सस्टेनेबल भी है, क्योंकि ये इनको डिस्पोज ऑफ करना बहुत इजी है, ये बायोडिग्रेडेबल जो है मटेरियल से बनी हुई प्लेट्स होती हैं। अगर हम कंपेयर करें आज के टाइम पे जो कि थर्माकोल या प्लास्टिक्स की प्लेट्स आ रही हैं, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है डिस्पोज करने के लिए, तो वहां पे ये जो फोकलोर है उस एरिया का, जो कि हम उस जियो लोकेलिटी के साथ अगर उसको जोड़ते हैं, तो जो जियोफोकिज्म है उस एरिया का, वो एक तरीके से जो रिचुअल्स के माध्यम से, अपने जो प्रैक्टिसेस है उनके माध्यम से एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का काम कर रहा है, और बहुत बड़ा अपना एक योगदान दे रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ। इसी के साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और जो हमारे कुछ मिशन हैं उनको मैं मेंशन करना चाहूंगा अपनी स्टडी के अंदर, इस टॉक के अंदर। जैसे कि जो हमारे नेशनल पांडुलिपि मिशन 2003 में स्टार्ट हुए थे, जिसके अंदर प्रिजर्वेशन ऑफ फोकलोर की बात की गई थी। इसी के साथ साथ जो हमारे हिली एरियाज हैं वहां पे हिली एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अंदर फॉर्मेशन ऑफ कल्चरल काउंसिल्स की बात की गई थी। और अभी मैं आगे आप सभी के साथ वाटर बॉडीज का जो है डिस्कस करूंगा। तो वाटर बॉडीज से रिलेटेड हमारी रामसर कन्वेंशंस हैं, जो कि वाटर बॉडीज को कंजर्व और प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। और हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो कि एक तरीके से सस्टेनेबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं जो हमारे फोकलोर है, जियोफोकिज्म है, उसको ध्यान में रखते हुए। तो इसी के साथ मैं आपके साथ मंडी के हमारे मंडी एंड कुल्लू डिस्ट्रिक्ट्स के 4 लेक्स हैं, जिनकी जिनकी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मंडी एक डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का। लिटरली मंडी का जो मीनिंग है वो एक मार्केट का होता है। और ये जो ब्यास रिवर है उसके किनारे के ऊपर ये जो डिस्ट्रिक्ट है, वो जो टाउन है वो वहां पे है। और इसको छोटी काशी भी कहा जाता है।
अगर देखें तो जो हमारा वाराणसी, जो बनारस है, जो काशी है, उसके अंदर जो महाभारत के से अगर हम उसको रिलेट करें तो वहां पे बताया गया है कि वहां पे 81 टेम्पल्स हैं। और जो मंडी टाउन है, इसके अंदर 80 टेम्पल्स हैं। और जो एक टेम्पल है, जो अर्धनारेश्वर टेम्पल है, वो विदाउट सीलिंग है। तो इसको जो है छोटी काशी भी कहा जाता है, बिकॉज कि यहाँ पे 80 टेम्पल हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्पेशल फीचर इनके जो जितने भी टेम्पल्स उनमें देखने को मिलता है कि जो स्टैंडिंग नंदी है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा किसी भी टेम्पल में हमें स्टैंडिंग नंदी नहीं मिलेगा। अगर वाराणसी की बात करें तो वहां पे जो नंदी जी हैं वो बैठे हुए हमें दिखते हैं। और यहाँ पे जो नंदी जी की जो टेल है, जो पूंछ है, उसके ऊपर हमें एक मार्कंडेश्वर ऋषि का जो वो एग्जाम्पल लेते हैं कि जो यदुवंश जो रीजन है उससे ये संबंध रखते हैं। तो मंडी है, यहाँ पे जो रिलीजन है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है लोगों के आम जनजीवन के अंदर। जितना भी अपना वो कार्य शुरुआत करते हैं वो देवता के साथ कंसर्न करके विद द हेल्प ऑफ गुर। जैसे हमारे पुजारी होते हैं, तो वहां पे मंडी और हिमाचल, मेनली हिमाचल रीजन के अंदर जहाँ पे देवता का कल्चर है, देवता डाइटी कल्चर है, वहां पे हमें गुर देखने को मिलते हैं। गुर एक सिंपली एक इंटरमीडिएट का रोल प्ले करते हैं देवता और कॉमन लोगों के बीच में। यहाँ पे अगर देखा जाए तो वहां पे मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंटरनेशनल शिवरात्रि फेस्टिवल है, जो कि आज भी चला हुआ है। और इसी वीक के अंदर जो शिवरात्रि है, इंटरनेशनल लेवल पे वहां पे सेलिब्रेट की जाती है, जहाँ पे सारे देवता जो हैं वो मंडी जो टाउन है वहां पे आके इकट्ठे होते हैं। और अपने आगे के जो भी चीजें होती हैं, डिसीजन होते हैं आने वाले सालों को, वो एक तरीके से विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी, वो मतलब कम्युनिटी लेवल पे वो लोग जो है डिसाइड करते हैं। सेम हमें कुल्लू दशहरा के अंदर देखने को मिलता है। ये यहाँ पे एक मेजर प्रैक्टिसेस हैं। इसी के साथ मैं अब आपके साथ जो प्राशर लेक है, जो पहला लेक है, मैं इसके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। बेसिकली ये मंडी टाउन के अंदर जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है वहां पे ये स्थित है। और ये एक होलोमिक्टिक लेक है। होलोमिक्टिक यहाँ पे एक ज्योग्राफिकल टर्म है जो कि डिनोट करती है कि जो भी इसका पानी है वो इक्वल प्रोपोर्शन में, अगर हम देखें तो जितने भी मिनरल्स हैं, कहीं से भी हम पानी का सैंपल लेंगे उसके अंदर जो थ्रू आउट लेक वो जो मिनरल्स हैं हमें वो इकट्ठा ही मिलेंगे। और ये भी वहाँ का बिलीफ है कि जो इसका पानी है और जो इसकी प्लांट्स हैं वो एक तरीके से नेचुरल हीलिंग पावर्स की तरह वहां पे काम करते हैं, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पैगोडा स्टाइल टेम्पल है जो कि पराशर ऋषि जी का है, जो कि महाभारता से हमारे संबंध रखते हैं। और इसी के साथ अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पे जो ये पानी है ये एक तरीके से सेक्रेड, ये लोग उसको पवित्र मानते हैं, जो कि अपने जो इनकी पाठ पूजा है उसके अंदर जो है यूज करते हैं। इसी के साथ यहाँ पे एक प्लांट है एकोरस कैलेमस, वो भी मिलता है जिसकी अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। और उस प्लांट की जो रूट्स हैं उनको ये लोग जो है यूज करते हैं अपनी पूजा के अंदर। और इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो ये लेक है यहाँ पे, ये ओनली वाटर सोर्स है इस एरिया के अंदर। तो एक तरीके से जो ये लोग हैं इस लेक को अपने रिलीजन के साथ कनेक्ट करके और जो अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस के साथ कनेक्ट करके इसको प्रिजर्व करने का काम कर रहे हैं। और जो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी है, जो एक्वेटिक हैबिटेट है, ये इस लेक के अंदर बाहरी किसी भी एंट्री को इन्होंने बैन कर रखा है। इस पिक्चर के अंदर आपको फेंसिंग जो है इसके अंदर दिख रही होगी, जो कि क्लियरली, और यहाँ पे इन्होंने चौकीदार को भी अपॉइंट किया है कि कोई भी इस लेक के अंदर एंटर ना करे। सिर्फ इस कम्युनिटी के जो लोग हैं इस पानी को ड्रिंकिंग पर्पस और पाठ पूजा के लिए जो है वो लोग यूज करते हैं। तो जो यहाँ के रिलीजियस प्रैक्टिसेस है वो एक तरीके से हमें ये दिखाती है कि वो किस प्रकार से जो ये बायोडाइवर्सिटी है इसको प्रिजर्व करने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ में आपके साथ जो सेकंड लेक है, रिवाल्सर लेक है, मैं इसका आपके साथ साझा करना चाहूंगा। ये भी मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही स्थित है। और यहाँ पे हमें तीन रिलीजन देखने को मिलते हैं, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड सिखिज्म। और ये जो रिवाल्सर लेक है ये इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हमारी जो रामसर साइट्स है इंडिया की, उसके अंदर इसको कंसिडर किया गया है। और यहाँ पे जो मेजर फेस्टिवल है वो तसेशु और बैसाखी फेस्टिवल्स हमारे बहुत ही फेमस मेजर फेस्टिवल्स हैं इस एरिया के। इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते होंगे कि इस एरिया के अंदर ये एक तल के ऊपर जो ये लेक है जो वो स्थित है। और आसपास में आपको यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो देखने को मिल रही है। अब अगर रिवाल्सर की हम बात करते हैं तो जितनी भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है, जैसे कि इस लेक के आसपास तीन मेजर रिलीजन्स जो है वो पॉपुलेटेड हैं।
तो यहाँ पे जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है वो इस रीजन की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एक मेजर पार्ट जो है प्ले करते हैं। और इसी के साथ साथ जो यहाँ पे जो मेजर फेस्टिवल्स होते हैं, और जैसे जो भी आसपास के अंदर पॉपुलेशन है, वहाँ का एक अगर स्टडी, जो साइंटिफिक स्टडीज हैं, उन्होंने ये पाया है कि यहाँ का जो सीवेज सिस्टम है वो बहुत ही पुअर है। और इस लेक के आसपास में सेप्टिक टैंक्स भी हैं। और एक दूसरा, इस लेक के अंदर जो फिशेज हैं, जो रिलीजन है, बुद्धिज्म और हिंदुइज्म और जो यहाँ पे सिखिज्म है, वहां पे जो फिशेस को फीड करते हैं वो लोग, एक तरीके से वो इस लेक की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको वो जो है डिस्टर्ब कर रही है। जैसे कि यहाँ पे जो पॉल्यूशन है वो एक तरीके से वो बहुत ही लार्ज लेवल के अंदर इंक्रीज हुआ है, जिसका मेजर इफेक्ट इस लेक के ऊपर देखा गया है। रिसेंटली एक टाइम के ऊपर लगभग 7 से 8 साल पहले इस लेक के अंदर जो भी फिशेस थी वो उनको काफी इम्पेक्ट हुआ था, ये सिर्फ फीडिंग की वजह से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे इस फोटो के अंदर देख रहे हैं, ये एक मेजर ड्रेनेज एंट्रेंस है इस रिवाल्सर लेक के अंदर, जो कि हमें क्लियरली हमें दिख रहा है कि किस तरीके से जो सीवेज रन ऑफ है वो कैसे, और जो पॉपुलेशन डेंसिफिकेशन है किस तरीके से इस लेक के जो लाइफ स्पैन है उसको एक थ्रेट है, और जो यहाँ का एक्वेटिक सिस्टम है उसके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। ये साइंटिफिक स्टडी जो कश्यप 2012 के अंदर, जो कश्यप जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से संबंध रखते हैं, उनकी ये स्टडी थी जिन्होंने इस जो पोल्यूशन के बारे में जो है मेंशन किया था अपनी स्टडी में। इसी के साथ में आपको जो थर्ड लेक है जो कि कमरूनाग लेक है, इसका मैं आपके साथ जिक्र करना चाहूंगा। ये बेसिकली जो धौलाधार माउंटेन्स है हमारी, वहां पे ये लेक स्थित है, और बहुत ही हाई एल्टीट्यूड, मोर देन 3000 एल्टीट्यूड के ऊपर, मीटर्स के अबोव ये लेक स्थित है। और ये वेरी डिफिकल्ट है ट्रैक करने के लिए। और अगस्त से मार्च का जो टाइम है वही टाइम होता है जहाँ पे जब हम इसको ट्रैक जो है यहाँ पे ट्रैकिंग कर सकते, यहाँ पे ट्रैकिंग करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल, हैवी स्नोफॉल होता है, यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी नहीं है। एक तरीके से जो इस जो रीजन है इसके अंदर लेस टूरिस्ट इन्फ्लक्स है, और यहाँ के जो लोकल्स हैं वो लोग एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं। जो यहाँ की जो काफी कोशिश की गई है यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी लाने की, पर वो लोग जो है उन्होंने अपने रिलीजियस बिलीफ और कल्चरल बिलीफ्स के हवाला देते हुए यहाँ पे जो डेवलपमेंट है उसको रोक दिया है। और इसी के साथ जो फोर्थ है वो सिरवलसर लेक है, जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है, और ये डीप एल्पाइन फॉरेस्ट के अंदर है। यहाँ पे आपको एक टेम्पल भी दिख रहा होगा, और यहाँ पे एक बर्ड है, बर्ड अम्बी, जो कि इस लेक के अंदर अगर कुछ भी गिर जाता है तो वो अपनी चोंच से उसको बाहर निकाल देते हैं। और काफी जो इसका फ्लोरा और फोना है वो काफी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इसके अंदर है, और जो इसका वाटर है उसको भी काफी मेडिसिनल, जो कि एक नेचुरल हीलिंग पावर्स के साथ इस कम्युनिटी के जो लोग हैं वो इसको मानते हैं। और क्लियरली हम यहाँ की लोकेशन को इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं कि कितनी ब्यूटीफुल लोकेशन है, और कितना यहाँ का जो इकोलॉजी है वो पूरा प्रॉपरली बैलेंस्ड है। यहाँ पे हमें सिंपल एक टेम्पल दिख रहा है जो कि बूढ़ी नागिन जो माता है उसका टेम्पल है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कि रिलीजियस जो बिलीफ है वो एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं, जो कि हमारे कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके लिए। जो ये पिक्चर है इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि सिंपली एक ट्रैक है, ये कमरूनाग जो हमारा लेक है वहां पे सिंपली एक क्योंकि रोड कनेक्टिविटी वहां पे नहीं है। और जैसा हमने देखा पराशर और रिवाल्सर के अंदर, जो हमने वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी को देखा, वहां पे जो टूरिस्ट इन्फ्लक्स था, जो मेजर जो हम देख रहे थे कि किस तरीके से वहां पे जो मेजर फेस्टिवल्स हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए वहां पे पॉपुलेशन इकट्ठी होती है, और जो भी उनका वेस्ट होता है एक तरीके से वो किसी ना किसी सेंस में एक तरीके से डंप तो आखिर में जो है लेक्स के अंदर ही जा रहा है। तो एक तरीके से देख सकते हैं कि जो बिलीफ सिस्टम है वो एक बहुत बड़ा मेजर जो है रोल प्ले करता है वहां की इकोलॉजी को सस्टेन करने में। और यहाँ पे अगर हम देखें, हम डेवलपमेंट की अगर बात करें, जो रिवाल्सर लेक है और जो पराशर लेक है वो वेल कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ रोड्स। पर अगर हम सिरोलसर और कमरूनाग की बात करें तो वो वहां पे जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पा रहा है। वहां पे अगर कुछ सामान भी पहुंचाना पड़ता है तो उसको 7 से 8 घंटे, जो कि नियरेस्ट जो वहां पे गांव है उससे लगता है। और वेरी डिफिकल्ट टेरेन की वजह से वहां पे टूरिस्ट इन्फ्लक्स है वो बहुत कम है, और वहां की जो बायोडाइवर्सिटी है वो एक तरीके से प्रिजर्व है, और वो वहां पे एक तरीके से सस्टेन्ड है।
अब हम रिलीजन की बात करते हैं। अगर हमने दोनों लेक्स को अगर हम कंपेयर करें, जैसे पराशर और रिवालसर, अगर हम टूरिस्ट इन्फ्लक्स की बात करें पराशर और रिवालसर में, तो हमें देखने को मिलता है कि जो पराशर लेक है, कमरूनाग लेक है, सिरोलसर लेक है, वहाँ का जो रिलीजन है एक तरीके से पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है उस एरिया की जो बायोडाइवर्सिटी है, एक्वेटिक हैबिटेट है, उसको सस्टेन करने के लिए। चाहे वो अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस के अंदर जो पानी है जैसे सेक्रेड मान के वो लोग यूज कर रहे हैं, प्लांट्स को वो पूजा के लिए यूज कर रहे हैं, तो एक तरीके से जो उनकी ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो उनकी इंडिजिनस नॉलेज है, उसकी हेल्प से वो उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी, उस जियोलोकेलिटी को एक तरीके से प्रिजर्व करने का काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें जैसे कि वहां पे जो डेवलपमेंट को वो कम्युनिटी जो है वो मना कर रही है, वो एक तरीके से इकोलॉजिकल बैलेंस की बात, वहां पे एक इकोलॉजिकल मैसेज हमें शो कर रहे हैं। चाहे वो लेक के अंदर एंट्री का काम हो, एंट्री बैन करने का काम हो, अपॉइंटमेंट ऑफ चौकीदार हो, तो एक तरीके से वो उस एरिया को जो वहां की वाटर बॉडीज है, जो कि ओनली वाटर बॉडीज है उस एरिया की, उनको वो प्रिजर्व करने का काम कर रही है। इसी के साथ आयरनिकली अगर हम देखें रिवाल्सर के अंदर, जो कि एक बहुत बड़े लेवल पे हमने देखा कि स्लोली स्लोली जो वहां की पॉपुलेशन है, जो रिलीजन है, जो तीनों रिलीजन है, वो इनडायरेक्टली उस एरिया की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसको डिग्रेड कर रहे हैं। इसी के साथ जो यहाँ की ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज है, अगर हम देखें तो पराशर पराशर की पिक्चर है जो कि साइंटिफिक स्टडीज के अंदर ये बताया है कि जो नेचुरल ब्यूटी है वो एक तरीके से डेट्रॉइट होती है जब वहां पे हाई इन्फ्लक्स ऑफ टूरिस्ट हो जाता है। अगर हम एग्जाम्पल ले शिमला का, मनाली का, तो एक तरीके से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां का जो एनवायरमेंट है, जो कि वहां पे जो मॉडर्न इरा ऑफ पॉसिबलिज्म है, उसने वहां के जो एनवायरमेंटलिज्म को किस तरीके से डिग्रेड किया है। और यहाँ पे हम सिंपली रिवाल्सर और पराशर को एक तरीके से कंपेयर करके हम देख सकते हैं। इसी के साथ में आपके साथ जो है छठ पूजा का जो त्योहार हो गया, जो हमारा गणेश विसर्जन का त्योहार हो गया, दुर्गा पूजा का त्योहार हो गया, उसको भी मैं आपके साथ मेंशन करना चाहूंगा। एक तरीके से हम बात करते हैं कि हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस का, बायोडिग्रेडेबल थिंग्स का हम अपने जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उसके अंदर यूज करेंगे, पर कुछ ना कुछ हद तक हर कोई उस सब्सटेंस को, उस हर कोई बायोडिग्रेडेबल चीज को जो है अफोर्ड नहीं कर पाता है। और जो हमारी गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं लैक कर जाती है जो कि बायोडिग्रेडेबल एनवायरमेंट फ्रेंडली जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अवेलेबल कराने में। तो एक तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे रिलीजन के अंदर कुछ कुछ प्रैक्टिसेस हैं, कुछ कुछ हमारे ट्रेडिशंस हैं जो कि हमारे जो एनवायरमेंट है उसको डिग्रेड करने का काम करते हैं। पर कुछ ना कुछ जगह, किसी ना किसी जगह, चाहे जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 स्टडीज का, 4 वाटर बॉडीज का एग्जांपल लिया जो कि हमारे नेचर को सस्टेन करने का काम कर रही हैं। इसी के साथ साथ जो जियोफोकिज्म है वो आज के टाइम पे एनवायरमेंट को पॉसिबलिज्म से बचाने का काम करता है। एक तरीके से जो भी अगर हम इसके अंदर मैं अपनी इस टॉक को मैं कंक्लूड करना चाहूंगा कि एक तरीके से जो रिवाल्सर की अगर हम बात करते हैं वो हाईली कमर्शलाइज हो गया है। जो वहां पे मार्केट कैपिटलिज्म जिस तरीके से वहां पे बढ़ा है विद ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, एक तरीके से उसने वहां की बायोडाइवर्सिटी को पोल्यूट कर दिया है। और अगर टाइमली अगर हमें हमने कोई गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन नहीं लिया, तो ऐसा ही जो हमारी 3 वाटर बॉडीज, जो मंडी और कोलो डिस्ट्रिक्ट की 3 वाटर बॉडीज है, अगर वहां पे एक जो डेवलपमेंट ऑफ प्लान तरीके से नहीं हुआ, जो पॉलिसीज अगर प्लान तरीके से नहीं आई, तो वहां पे भी जो रिवाल्सर का जो हाल आज के टाइम पे हुआ है वैसा ही हाल हो सकता है। जो हमारे महाभारत के अंदर 5 जो हमारे पांडवाज थे उनके नाम के ऊपर रिवाल्सर के, अगर वहां पे आप देखेंगे तो वहां पे भी 5 लेक्स पहले हुआ करते थे जो आज के टाइम पे कंप्लीटली खत्म हो चुके हैं। क्योंकि लास्ट अभी कुछ पार्ट बचा हुआ है जो कि मॉनसून में वहां पे थोड़ा सा भर जाता है, जहां पे कुंती लेक करके है, जो कि जिसको हम थोड़ा सा आज के टाइम पे देख सकते हैं। पर वहां पे जो 5 लेक्स थे पांडव के नाम पे वो पूरा कंप्लीटली खत्म हो चुके हैं। और रिवाल्सर भी एक टाइम पे वहां पे हाईली पॉल्यूटेड हो जाएगा बिकॉज ऑफ रिलीजन। बट रिलीजन हम कहीं पे देख रहे हैं कि जो हमारा रिलीजन है एक तरीके से जो हमारी ओरल ट्रेडिशन है वो एक क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स का काम करते हैं। जैसे सेक्रेटनेस ऑफ लेक्स की अगर हम बात करें, जो पानी को प्रिजर्व कर रहे हैं, जो बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व कर रहे हैं, जो वहाँ के फ्लोरा एंड फोना को प्रिजर्व करने का काम कर रहे हैं। पर कुछ ट्रेडिशंस हैं हमारे जो कि दोबारा एक तरीके से हमें उनको दोबारा से अपनाने की जरूरत है और एक ध्यान देने की जरूरत है, जिसके हेल्प से हम हमारी इकोलॉजी को जो है प्रिजर्व करने का काम कर सकते हैं।
यहाँ पे मैं आपको, जो मेरी लास्ट स्लाइड है, मैं इसके अंदर आपको दिखाना चाहूंगा। ये एक पिक्चर है जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट का है, मंडी टाउन का है। हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ का पॉसिबलिज्म है उसने यहाँ के एनवायरमेंटलिज्म को किस तरीके से खत्म कर दिया है। और हमें टाइमली अगर हमने डिसीजंस नहीं लिए तो जो हमारा नेचर है, जो मदर नेचर है, वो एक तरीके से धीरे धीरे डिग्रेड होता हुआ चला जाएगा। और नाउ आई एम ओपन टू द क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। Thank you, Mr. Saurabh. Another such a wonderful session we have today. And like through all the references which you have gave, the lakes, or just say a bit for a better panoramic view, ki water bodies, we get this idea ki how geofocusm is contributing and what the capacity it holds to contribute in the future as well. Now let's move to some of the questions which have been asked. So the first question is कि इंडिया में ऑलरेडी जियोफोकिज्म जो है वो था, पहले से ही इस तरीके की जो कल्चर है हमारे पास है. But how to combat such culture with the present scientific challenges which we are facing? For example, अगर हम geophocism को contemporary times में include करें या apply करें किसी भी एक sustainable program के लिए, तो जो contemporary scientific hurdles हैं उनको किस तरीके से face किया जाए? जो हमारे जो इस टाइम पे जो साइंटिफिक हर्डल्स है, जैसे हम सिंपली अगर बात करें, जैसे कि जो भी हमारा कोई कल्चरल रिचुअल हो गया, जैसे सिंपली जैसे मैंने जियोफोकिज्म की बात किया आपके साथ, जो मैंने दो एग्जांपल रखे राजस्थान और हिमाचल डिस्ट्रिक्ट के, जहाँ पे आज भी वो लोग जो है अपनी नेचर से जो उनको मिलता है उन प्लेट्स का वो जो लोग है यूज कर रहे हैं। तो हमें एक तरीके से यहाँ पे इस टाइम पे अब हम इजीली अवेलेबल के चक्कर में हम जो है जो एनवायरमेंट अनफ्रेंडली चीजें हैं उनको हम इजीली जो कि अवेलेबल हो जाते हैं उनको हम इजीली ले आते हैं, और उनको जो है आज के टाइम पे हमारे जो रिलीजियस और जो कल्चरल प्रैक्टिसेस है उनके अंदर हम उसको जो है यूज कर लेते हैं। तो हमें एक तरीके से लोकलाइजेशन करना पड़ेगा जो हमारे गोल्स हैं, तो विद द हेल्प ऑफ लोकलाइजेशन। और जो भी कोई पॉलिसीज आती हैं उसको हम रीजन वाइज ना देख के एक होल, जैसे कि अगर नमामि गंगे का हम एग्जांपल लेते हैं, अगर उसको देखें तो जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है उसको वो अपने तरीके से देख रहे हैं, उत्तराखंड गवर्नमेंट अपने तरीके से देख रहा है, और जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है उसको अपने तरीके से देख रहे हैं, एक तरीके से उसके अंदर अपने डिसीजंस ले रहे हैं उस तरीके में। अगर हम उसको नेशनलाइजेशन करें, अगर ओवरऑल हम उसको एक तरीके से लोकल लेवल के ऊपर लेकर आए और एक नेशनलाइजेशन उसके अंदर हम करें, तो हम इजीली जो आज के जो पॉसिबलिज्म की जो चैलेंजेस हैं उनको हम इजीली टैकल कर सकते हैं। ओके, सिंस नेचर इज फॉर ऑल, तो हमको एक ग्लोबल अप्रोच या नेशनल अप्रोच लेकर चलना पड़ेगा. दैट्स रियली नाइस. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, सो geophocism, how geophocism acts globally, or what is the role of geophocism at global level? Am I not audible? Hello, am I audible? Yes, you are. Yes, continue, Salen. You also audible. And Saurabh, kindly unmute. Okay, Salen. Now you. Yes, can you please repeat the question? Your voice was breaking down. Fine. That's why I asked, because I could guess the voice में कुछ problem था. Okay, so the question was कि how geophocism, what is the role of the geophocism at the global level? How it acts globally? Yes, geofocusing, that like I mentioned, this sustainable development goals, we are mentioning that this our vision for 2047. We are talking about this carbon emission programs. So we have to consider the local जो local beliefs हैं हमारे, जो local faiths हैं हमारे, जो हमारा society का जो rituals हैं, उनके जो हमारे practices हैं उनको हमें ध्यान में रखते हुए जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, जो कि हिली एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का मैंने मेंशन किया, जो कि कल्चरल काउंसिल्स की जो फॉर्मेशन की बात कर रहे थे, तो हम एक लार्ज लेवल के ऊपर देख सकते हैं। दूसरा, जैसे कि जो हमारे फेस्टिवल्स है, जैसे इंटरनेशनल शिवरात्रि फेस्टिवल है जिसके अंदर वो देवता कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कुल्लू दशहरा है जिसके अंदर वो पूरा अपना डाइटी कल्चर को वो एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको जब हम एक नेशनल लेवल के ऊपर देखेंगे तो क्लियरली एक मैसेज जाएगा कि हमें जो हमारे
फोक्स हैं, जो हमारे उनके कल्चरल बिलीफ्स हैं, उनको हम एक नेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर रखेंगे, तो हम इजीली जो है, जो चैलेंजेस हैं हमारे, उनको हम एक तरीके से एड्रेस कर सकेंगे इस चीज के अंदर। Okay, next question, or you could say the last question, which I'm taking, which is almost the same, but what are the challenges in integrating geo-focused knowledge system with scientific approaches to conservation in India? Because India में geofocusm को moreover एक अंधविश्वास के साथ ले लिया जाता है कि अगर ये ऐसा कर रहे हैं, so it is a superstitious thing. So how to combat that? And how to put that scientific approach और उसको फिर local level तक कैसे पहुंचाया जाए? यस यस यस, जैसे कि आप बात कर रहे हैं, मैंने जैसा मेंशन किया था शुरू में कि जो जियोफोकिज्म है, जो हमारा फोकलोर है, वो एक तरीके से जो हमारा ट्रेडिशन है, जो हमारा कल्चर है, हमारी प्रैक्टिसेस हैं, वो भी इसके अंदर आते हैं। यही नहीं कि सिर्फ हम इसको रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। एक तरीके से अगर मैं हिमाचल की बात करूं, तो वो उनके कल्चर का पार्ट है, वो लोग उसको इजीली वो देखते हैं, और वो अपने एक कल्चर के पार्ट से और अपने रिलीजियस बिलीफ के साथ वो एनवायरनमेंट के लिए सस्टेनेबल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। और वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वो जैसे कि ट्राइबल हिली एरियाज के अंदर ही जो हिली डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो फॉर्मेशन ऑफ कल्चरल काउंसिल की जो बात की गई थी, वो वहां पे आज से नहीं, वो 2005 2006 से वहां पे चाल चलन के अंदर है, और काफी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वो वहां के एरिया के अंदर। जियोफोकिज्म सिंपली एक रिलीजन से अगर हम इसको थोड़ा सा दूर करके देखेंगे, अब जो मैंने आपको बात की, जो प्रैक्टिसेस है वहां पे, जो लीफ प्लेट्स की बात की, वो तो उनके रिलीजन का पार्ट नहीं है, वो तो एक प्रैक्टिस है सिंपल। अगर हम नॉर्मल एक विलेज के अंदर देखें, जो कोई भी प्रोग्राम होता है उसके अंदर हम थर्माकोल प्लेट्स को जो है यूज कर रहे हैं, तो हम उनको, उनकी बजाय हम लीव्स जो प्लेट है, जो हमारी बायोडिग्रेडेबल प्लेट्स हैं, उनको हम आज के टाइम पे यूज कर सकते हैं। आप आज के टाइम पे देख रहे होंगे कि जो प्लास्टिक है, जो कि आप दिल्ली का ही जो हम एग्जांपल ले सकते हैं कि उसको डिस्पोज ऑफ करने में कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैंने जो जियोफोकिज्म का एग्जांपल दिया, वो तो रिलीजन से नहीं था, पर वो उनकी एक प्रैक्टिस का पार्ट था, उनके फोकलोर का पार्ट था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको अंधविश्वास के रूप में ही हम देखेंगे। जो इसके अलावा रिलीजन का तो सिर्फ एग्जांपल हमने हिमाचल और राजस्थान, हिमाचल के अंदर से लिया, जो डाइटी कल्चर था वहां से लिया, कि किस तरीके से वो वाटर सोर्स को जो है प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। और साइंटिफिक स्टडीज ने भी वहां पे ये मेंशन किया है कि जो लेस टूरिस्ट इन्फ्लक्स है वहां का, और वहां की जो बायोडाइवर्सिटी है, उसके अंदर जो वहां का जो बिलीफ सिस्टम है, उसका भी एक बहुत बड़ा जो मेजर रोल है वो प्ले करने का काम करता है। मैंने तो बस उस चीज को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाके आप सभी के सामने रखा है। Uh, okay, that's so nice, Saurabh. All the answers which you gave were really wonderful. And the last question, which is from my side, would be, although we always ask this question in a way that what is your experience with GSTs, but this time I'm going to ask you in a different way. Like, agar, let's just say that you have to suggest this platform to one of your friends. So, what will be those 3 or 4 points which will you say to your friend कि इन points के basis पर आप बोलेंगे कि हाँ ये points हैं और इन points के basis पर GSTS is a good or a bad initiative. So, what will be those 3 to 4 points which you want to give, whether good or bad? Yes, yes, it's a very good platform. First of all, I would like to thank Ravidas Bishnoi, who introduced me with this platform. Actually, I did this study in 2019, before just COVID came to India. But this is in 4 years. I am just expressing, or I am putting this study in front of the 76 people who are with me. So it is a very good platform to share the research. Actually, जो research published के अंदर नहीं आया है अभी तक, और एक तरीके से इसको और एक टाइम पे लोकलाइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो एक मेजर यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी से भी हैं, आईआईटी रुड़की से भी हैं, आईआईटी मंडी से भी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से भी हैं। तो एक तरीके से वो सभी लोग एक साथ बैठ के एक हर वीक के ऊपर किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर एक तरीके से जो है डिस्कशन यहाँ पे चलता है। तो एक तरीके से एक बहुत मतलब मेरे लिए तो बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो है जीएसटीएस रहा है, जिसने जो मेरी 1.5 साल की जो स्टडी थी उसका एक छोटा सा पार्ट मुझे यहाँ पे रखने के लिए, इन सभी के साथ जो 70 लोग हैं इनके साथ रखने के लिए। और मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं सभी लोगों के साथ इंट्रोड्यूस, मतलब मैं मिल पा रहा हूँ इनसे।
तो एक बहुत बड़ा मतलब वो मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा मतलब मैं काफी शुक्रगुजार हूँ GSTS का, जिसने मुझे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया मेरी एक स्टडी का छोटा सा पार्ट आप सभी के साथ शेयर करने के लिए। तो मैं इन सब चीजों को जो है शेयर करना चाहूंगा। Thank you so much, Mr. Saurabh, for you GST, and once again congratulations. आपका जो आज का प्रेजेंटेशन था वो वाकई बहुत बेहतरीन था, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। Now let's proceed this session further, and now I would like to invite our guest of honor, Mr. Dr. Sanjay Kumar sir, for his final Sailendra, remarks. can I take your 10 seconds? Sorry to interrupt you. Uh, Yes. may I request each and every participants, maybe because just Saurabh uh, told us that professors are from Punjab, Mandi, Roorkee. So, sir, everybody kindly stay till end. Definitely, I would like to invite you for the quick remarks after our guest of honor done. Uh, so please stay till the end. Shailendra, over to you. Okay, sir. So now it's time to invite guest of honor for his final remarks. So, Dr. Sanjay, kindly give us your final remarks over today's topic and over today's this talk, which was given by Mr. Saurabh. तो संजय आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा स्पीकर, यस यूज दैट, या आवाज आ रही है अब? Yes, sir. Now. हाँ, तो सबसे पहले तो सौरभ जी का जो प्रेजेंटेशन है रिसर्च बेस्ड कह सकते हैं इसको, क्योंकि इन्होंने हिमाचल और अधिकतम राजस्थान के दो प्रांत पर इन्होंने इनका जो काम था इस पर उन्होंने दिया। लेकिन इनके दो तीन शब्दों पर मेरी ना मतलब एक अपना अंडरस्टैंडिंग है। सबसे पहले तो रिलीजन को ये मतलब धर्म से जोड़ के देखते हैं। तो मेरा कहना है कि रिलीजन जस्ट रेलीगेयर यानी कि चीज़ों को जोड़ने की चीज़ है, और इसके बराबर में मजहब, पंथ, सेक्ट, संप्रदाय आता है। धर्म इज अ वे ऑफ लिविंग। एज अ सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देता है या हम जो उसको समझते हैं, तो उसको मतलब दोनों को एक जगह खड़ा करना मुझे लगता है कि शब्द और हमारे संस्कृति के खिलाफ जो हमारी लोक संस्कृति है उसके भी ये मतलब अगेंस्ट हैं। जब हम लोक कला की बात कर रहे हैं, फोकलोर की बात कर रहे हैं, तो वहां पर अतिथि देवो भव हर घर में है। ये हमारे संस्कृति में लिखा हुआ एक संस्कृत का वर्ड नहीं है। अगर गांव के किसी भी समाज में जाएंगे, आप किसी भी परिवार से हो सकते हैं, तो आपकी अपनी वहां पर एक मान्यताएं। दूसरा, आपने एक शब्द ग्लोकलाइजेशन, स्थानीयकरण की बात की। तो अभी कह सकते हैं कि हमारे जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनका एक मतलब वोकल फॉर लोकल, इससे भी अगर बढ़कर हम देखें तो थिंक ग्लोबल लाइव लोकल, ये हमारी जीने की परंपरा ही रही है। इसमें जो एक शब्द जोड़ा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये शब्द ही आया है मुझे लगता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद। उससे पहले जो वर्ल्ड मार्केट में किसी व्यक्ति का योगदान था या किसी देश का योगदान था, किसी क्षेत्र का योगदान था, तो मुझे लगता है भारत और चाइना का था। अगर एंगस मेडिसन का हम अगर इकोनॉमिक रिसर्च को बेस्ड मानकर चले, एंगस मेडिसन एक व्यक्ति हुए, तो वो कहते हैं कि भारत का 1750 तक 35% वर्ल्ड का जो इकोनॉमिक जो एक्सचेंज है या ट्रेड एंड कॉमर्स है, उसमें उनका भारत का योगदान है 35%। जिस देश का योगदान 35% हो, उस देश में लोक कला को लेकर के और उस दौर का जो बिजनेस और व्यापार है वो केवल कृषि और पशुपालन के आधारित ही है, जिसमें आप आर्टिसन और आर्ट और आप छोटे छोटे शिल्प कला की बात कर सकते हैं। इसके अलावा आज की तरह बड़े बड़े इंडस्ट्री या फिर सोशल मीडिया या सूचना क्रांति का दौर नहीं था। वो दो ही दौर था जिसको आप प्राचीन काल का दौर कह सकते हैं। औद्योगिक क्रांति और सूचना क्रांति से पहले भारत सुपर पावर हुआ करता था अपने इकोनॉमिक और ट्रेड के माध्यम से। तीसरा मतलब मेरी समझ में यहाँ लिखा हुआ है एक बिलीफ सिस्टम एंड इकोलॉजी। आपके मतलब रिसर्च पेपर का ये एक शब्द में मैं देखा मतलब पंक्ति में बिलीफ सिस्टम। आप भारतीय लोक संस्कृति का बिलीफ सिस्टम, अगर हम थोड़ी देर के लिए मध्य प्रदेश में अगर एक जगह हुआ, तो वहाँ का नाटक आज भी हमारे बिलीफ सिस्टम में शामिल है, आल्हा और उदल, अगर आपने नाम सुना होगा तो। और आल्हा और उदल वीरता का भी परिचय है,
न्याय का भी परिचय है, साहस का भी परिचय है, और एक व्यक्ति उदारता के साथ कैसे जी सकता है, वो आज 800, 900, 1000 वर्ष बाद भी हमारे जहन में है, जिसको आप आल्हा और उदल कह सकते हैं। तो आल्हा और उदल का नाटक हमारे फोकलोर में न केवल मतलब ये किस्सा गोई है, न कि हमारे जीवन में एक कोई मतलब एक यूटोपिया टाइप की बात है। ये एक जीवंत व्यक्ति का परिचय है जो सदियों से हमारे लोक नाट्य में चलता आ रहा है। मैं मिथिला क्षेत्र से आता हूँ, तो हमारे मिथिला में भी एक नाटक होती है, जाट और जटिन की लोक कलाएं होती है। अगर आप लोगों ने इसकी सुना होगा तो यह भी अपने आप में एक एक दो संस्कृति का, दो व्यक्ति का, दो परिवारों का जो कैसे समागम होता है, कैसे मेलजोल होता है, उसका एक परिचय है उस लोक कला में ही। और लोक कला तो भारत में किस्से कहानियां के माध्यम से हम पीढ़ी दर पीढ़ी, अगर साइंस लेबोरेटरी होकर के कोई रिसर्च का अनुसंधान करके कोई वैज्ञानिक दवा बनाता है, तो मुझे लगता है कि ट्रेडिशन जो है हमारे सोशल लेबोरेटरी में लेकर करके चीजें जब स्टैब्लिश होती है, तो वो आगे चल करके हमारी लोक संस्कृति का अंग बनता है। इसमें कोई भी संदर्भ कभी भी हमारे लिए नकारात्मक नहीं रहा है। हमने समय के साथ उसमें अगर कोई आडंबर जोड़ लिया है, तो वह हो सकता है। जैसे कि आप सामाजिक बुराई के रूप में आप दहेज को देख सकते हैं, एक दौर में इसके अपने एक एस्पेक्ट होगा। तीसरा है कि इसमें आपने जोड़ा है कि जियो, फोक और इज्म, ये 3 शब्द का आपने परिचय किया है। और जियो मतलब ज्योग्राफिकल एरिया, फोक मतलब कह सकते हैं वहाँ की लोक, और इज्म मतलब आपने सही शब्द बोला है कि यह एक आइडियोलॉजी भी है और एक मूवमेंट भी है। और आइडियोलॉजी और मूवमेंट ट्रेडिशनल भी होता है, और आज के दौर का आधुनिक विचारकों के आइडियोलॉग जितने हुए, उन्होंने भी एक अपने शब्द दिए, उनका भी अपना एक माध्यम होता है। और जो भी हमारी संस्कृति भारत के दौर में आप जहां भी जाकर के देखें, जिसमें उसमें आपको 2 से 3 चीजें आपको हर जगह मिलेगी। एक आपका विनम्रता का भाव मिलेगा। मैं मनीष सर को यह एक ये याद दिलाना चाहूंगा, सर मैं अपने देश को 2016 से लेकर 22 तक मैं देश के कोने कोने में जा चुका हूं, और अपनी संस्कृति को देखने का मैंने गंभीरतम प्रयास किया है। और एक बार मैं आसाम में था, और आसाम में जब मैं जीरीबाम एक जगह गया, वहां पर मैं अपनी कार से उतर के किसी के दरवाजे पर स्वयं खड़ा हो गया कि दादी अम्मा हाथ में पान और चून और चाय लेकर के, और अचानक मेरे पास खड़ी हो गई। मैं अपने ड्राइवर और दुभाषियों को मैंने पूछा कि भाई साहब ये क्या है, तो कहा कि भाई साहब ये सर ये आपके लिए चाय लेके दादी माँ आई हुई है। ये मतलब आप एक अनजान व्यक्ति के लिए हमारी संस्कृति में कितना मतलब जगह है, जबकि मैं उनको जानता भी नहीं, ना उनकी भाषा जानता हूँ, ना मेरी शक्ल उनसे मिलती जुलती है। तो मेरे दुभाषी ने कहा सर हमारी संस्कृति है, असम में जब आप जाएंगे तो आपको पान और सुपारी और चाय दी जाएगी। ये मैं असम की बात कर रहा हूँ। अगर आप मराठवाड़ा के क्षेत्र में महाराष्ट्र में कहीं घूमने जाएंगे, तो आपको मतलब धर्म जो सबसे अधिक भारत में संस्कृति में, जिसको आप रिलीजन ना कहें, तो सबसे अधिक अगर आप देखने को मिलेगा तो आपको मराठियों में देखने को मिलेगा। वो बोलते नहीं है, वो जी रहे हैं, जीते हैं। हम लोग तो थोड़ी सी शहर में या गांव के लोग अपनी अपनी समझ से भी देखते हैं, लेकिन मराठियों का जो खास करके वरकरी संप्रदाय के जो लोग होते हैं पंढरपुर का, वो उनका मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक ही सोर्स है कि जो हमारे गांव में पर्यावरण को लेकर के जो जागरूकता पहले थी, आज हम कैंपेन चला के भी उसको पूरा नहीं कर पा रहे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आपने एक शब्द का प्रयोग किया, जो हमारे बिहार का छठ पर्व है, वो टोटल ही अपने आप में सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। उसमें ना कोई आडंबर है, ना किसी को नुकसान है। हमारे पेड़ पौधे, हमारे खेत खलिहान, हमारे पोखर में जो पर्व होते हैं, उनके जितने भी इंग्रेडिएंट देख लें उस पर्व का, तो सब आपके प्रकृति से लिए गए होते हैं। किसी को नुकसान पहुंचाने की चीज नहीं होती उसमें। और झील, कई सारे महाराष्ट्र में अभी आपने हिमाचल प्रदेश में पराशर झील, रावलसर झील, कमरूनाग झील, ऐसे झील हैं। आपकी जानकारी के लिए एक मैं दूं कि हमारे बिहार में भी पोखर एक कंसेप्ट है, तालाब, जहां पर आपको जल का भी सामग्री मिलती है, वहां से आपको मछली का भी उत्पादन होता है। और मखाना, इस देश में 90% मखाना जो है वो हमारे मधुबनी जिले से भारत को प्राप्त। तो संस्कृति आपकी, फोकलोर हमारी जो आपकी होती है, वो कहीं ना कहीं आपके जनरेशन टू जनरेशन निकलती हुई चीजें होती है। साइंटिफिक डेवलपमेंट की तरह कोविड का काल का नहीं है कि 6 महीने में निकाल करके हमने प्रोडक्ट दे दिया और उस
प्रॉब्लम से हम बाहर आ गए। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसकी बात यूनाइटेड नेशन हमेशा करती है और सबको इस दायरे में लाने का प्रयास करता है, वो हमारे गांव के हर एक व्यक्ति का जीवंत आचरण है, व्यवहार है, और आने वाली पीढ़ियों के लिए सतत छोड़ने की जो परंपरा है, वही आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। गांव में जितने पेड़ मेरे सामने मेरे दादाजी ने लगाए, उतने मेरे बाबूजी ने नहीं लगाए, और उसके आधे भी मैं नहीं लगा पाया हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक स्लोगन नहीं है, ये हमारे जीवन जीने के आचरण में शामिल है। गांव के लोगों के लिए इतने बड़े शब्द का कोई मतलब नहीं है। वो गांव के आसपास इतने सारी झाड़ियां और पेड़ लगा देते हैं कि उनको समझ में भी नहीं आता कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कर रहे हैं क्या, नहीं करते हो। लेकिन वो पेड़ लगाते हैं, फल के लिए पेड़ लगाते हैं, छाया के लिए पेड़ लगाते हैं, उनके लकड़ी का उपयोग करने के लिए। बाकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहा। और मैं लास्ट में जो एक शब्द है यहाँ पर लिखा हुआ, मैं देखा कि सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट। सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट से मेरा संबंध इस तरह से है कि समाज और संस्कृति दोनों का ही अनन्यश्राय, मतलब कि एक दूसरे का पूरक संबंध है। पहले संस्कृति आई, फिर सभ्यता आई, और दोनों का मेल जोल ट्रेड एंड कॉमर्स में हुआ, और फिर वह एक वैश्वीकरण का रूप लिया। और सौरभ जी का आखिरी का जो पैराग्राफ था, उसमें लास्ट का, जब हम वैश्वीकरण की ओर चले गए तो फिर हम लोकलाइजेशन की ओर आ रहे हैं। यानी कि बिंदु से समुद्र हो गए, और समुद्र से फिर बिंदु से सिंधु हुए, और सिंधु से फिर समुद्र हो गए। तो फाइनली जो मेरा रिमार्क है वो है कि थिंक ग्लोबल, लाइव लोकल। शब्दों के साथ मैं अपना विचार को विराम देता हूँ। आगे कोई प्रश्न हो तो इस पर हम अपने विचार आगे रखने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और जीएसटीएस परिवार को, विशेषकर मनीष सर को, इतना बढ़िया क्रिएटिव, और मनीष सर को मैं यह ज्ञात कराना चाहूंगा कि इसमें सुदूर गांव के भी बच्चे आप में शामिल हैं, जिनके लिए इस तरह का सीरीज और इस तरह का लेक्चर अपने आप में एक अद्भुत इनलाइटेनमेंट का माध्यम हो सकता है। क्योंकि कोरोना पीरियड ने बहुत लोगों को नुकसान जरूर पहुंचाया है, लेकिन उसका सबसे बड़ा सृजन के रूप में हम सूचना क्रांति का यह जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, वेब सीरीज कर रहे हैं, या वेबिनार कर रहे हैं, ये इसका सबसे पॉजिटिव पॉइंट में से एक है। तो शिक्षा अब केवल किसी बड़े इंस्टीट्यूट के कमरों में ना होकर के गांव के धरातल पर भी उतर करके हम देख सकते हैं। आप सबका सहृदय धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच संजय सर। और हम सभी आपके दिए हुए निष्कर्षों से शामिल हैं। एंड जो आपने बोला कि पहले संस्कृति आई फिर सभ्यता आई, बिल्कुल वैसे ही जैसे नदी के किनारे हमने मकान बनाए, ना कि नदी हमारे मकानों के किनारे से गुजरी। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। एंड नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, इट्स टाइम to invite to be speaker for next Sunday, and he is Mr. Arpit, and he will be speaking on next Sunday on coral reefs. So Mr. Arpit, आप अपने objectives और अपने abstract को हम सबके समक्ष प्रस्तुत करें। Yes, sir. A very good evening to all the respected people here. First of all, I especially thanks to guest of honor, GSTS family, Dr. Manish Karma sir, and our eminent research scholar Ravi sir from my university for motivating me for this talk and giving me this digital platform to share my thoughts. I, Arpit Mishra, pursuing my master's in geography, School of Basic Science from Central University of Haryana. The topic for my presentation is coral reef as an important indicator for marine shelter. The objective of my talk is to address the holistic aspects of the coral reefs, to address the importance of coral reefs as an important marine shelter, to establish the transition from environmentalism to the possibilism and way towards the sustainability of coral reefs, worldwide distribution of coral reefs, to address the climate change and coral bleaching. And I also focus on how can we protect our coral reef through sustainable. It is the part of sustainable goals 14, life below water. So I would like to invite all of you present at this GSTS platform to be part of my presentation this coming weekend. Thank you.
Thank you, Mr. Arpit. Mr. Arpit, and we'll surely join you on next Sunday. Today is the day on which we will also announce a speaker of the month for the month February. तो इस अनाउंस करने से पहले लेट मी जस्ट टेल यू कि कौन कौन से स्पीकर्स थे हमारे फरवरी मंथ के. So starting with GSTS 153rd, which was given by Miss Dia Mittal, and the topic was Need for Legal Reforms in India. The second was GSTS 154th, which was given by Mr. Shibham Jha, and the topic was Reservation Development and Women. The next one was 155th, which was given by Mr. Gaurav, and the topic was AI deepfakes and right to privacy. And the last one was GSTS 156, which was given by Ms. Shrestha, and the topic was the evolution of India's trade and sustainability from ancient to modern times. Now, among all these speakers, the speaker of the month for February, which we have chosen, is Ms. Shrestha. So, Ms. Shrestha, lots and lots of congratulations. And Ms. Shrestha, would you like to unmute yourself and speak a few points regarding your experience and regarding how are you feeling right now? Yes, thank you, Shailendra, and thank you, GSTS team, and Manish sir. And congratulations, first of all, for creating such a commendable intellectual platform. This platform is so valuable, like we were discussing in the beginning of the session too, like Saurabh said. And today's session was also very enlightening to me. The whole geofolklore, it is a new concept to me. So thank you so much for the recognition and congratulations for this platform. Thank you, Ms. Reshtha. And the YouTube link of our channel is in the description. So you could check out Ms. Reshtha's talk through that link. Now, thank you so much, everybody, for joining us today once again. And at last, it's time to wrap up. But before this, I would like to hand over the moderation to Manish, sir. Before we also have to call some of the members, some of the respected members from Central University of Haryana. Okay, thank you, Silence. Really, it's a wonderful talk without wasting time because my duties are vote of thanks and invite few others to for the very quick remarks. Two from my side, and then I asked Saurabh whom I would like to invite because here I'm looking at Dr. Apurva, Dr. Pawan Kumar, Dr. Indu Yadav, because I do not know all these. I know Pawan sir, but other names. So firstly, I invite two from Delhi University, and Saurabh, can you give me hint whom you want to invite for your for yourself for quick remarks? Saurabh. Sir, Professor Monica Dara ma'am is there. Okay. Thank you. So, Professor Dara, I would like to invite you for your quick remarks. We do not know each other. I'm Dr. Manish Karmuar, and I'm in the Department of African Studies, University of Delhi. So, thank you, ma'am, for producing such type of research in university. So, ma'am, over to you for your quick remarks. Thank you, ma'am. Thank you very much, sir. It's a very good platform. So सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू करती हूँ कि आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म यंग स्कॉलर्स को दिया और जो सौरभ ने प्रेजेंटेशन दी रियली आई एम वेरी हैप्पी विद योर प्रेजेंटेशन सौरभ कमेंडेबल थी और बहुत क्लियर थी फोकलोर और रिलीजन ये इसमें ये दोनों चीजें ऐसी है जिसको आप अलग नहीं कर सकते हैं और मुझे लगता है कि बच्चे ने अपनी तरफ से सारे पैरामीटर्स को टच करने की कोशिश की है अभी फील्ड में न्यू है और बहुत सारी चीजें और उसको एक्सप्लोर करनी है तो आई विश यू गुड लक फॉर नेक्स्ट टाइम एंड आई वांट टू सी यू ऑन हाइट सो थैंक यू Thank you so much. Thank you, Professor Monica. I think you're from Central University, Haryana, ma'am. I'm very sorry sir. I'm from Chandigarh. I'm assistant Okay. to government college in Chandigarh. Okay, nice to talk to you, ma'am. Nice to talk. I kindly spread this message to your students also, so they can join. Because I left this college year back, but still I'm
I'm conducting all this session because this is a very important program for the young researchers. Thank you, ma'am, for joining. Okay, Saurabh, we want to invite others. So can you give me? Dr. Apu is there from IIT Roorkee. Okay. Dr. Apur, so over to you. Yeah. It's please for the quick remarks. Am Thank I you for aud- joining. Yeah, am I Yeah, audible? you are audible. Yeah, you are audible. Yeah, so I mean, I know Saurabh since 2021. We generally, I mean, I'm from electrical background, I'm not from this background. So I'm assistant professor here in electrical engineering department. But we do a lot of discussion on these topics because I mean, we are also working. I mean, okay, we are doing engineering, but again, our focus will be on sustainable development because you can see what is happening. I mean, at present in Bangalore, I mean, there are severe water shortage which is happening. So it is one example of how development without, I mean, okay, development is a necessity of today's world, but we also need to think from other aspects also. One more thing I would like to point, yeah, I mean, sustainable development is not just, I mean, okay, plantation is one of the important concern which actually which need to be focused, and it is one of the most important aspect of sustainable development. But it is also about the uh, the 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 day-to-day resources which we use, be it you're starting from your mobile to clothes to different things which you eat. All those things also lead to sustain. I mean, lead to unsustainable or development of carbon footprint. What is happening? So we also think from the overview, like whatever products we are using, if we can afford it, we should try to look for more sustainable solutions. We should try to adopt in our day-to-day activities those things. And again, I mean, I cannot tell technically what is the, I mean, in terms of geofocusm, but it's a important concern which we need to address if we would like for our, I mean, if we like to have a uh, good earth for our future generation. That's all from my side. Thank you. Thank you very much. Thank you. Yeah, and it is a very nice initiative, GSTS. It's a way by which people from deep down the villages also can able to listen to it, and they're presenting their ideas in a much simpler manner. very बहुत सिंपल तरीके से लोग प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आइडियाज, ताकि सबको समझ में आ रहा है. तो जरूरी नहीं है इसी फील्ड का होना चाहिए. And it is also a good training for research scholars how to present in a small amount of time. Maybe I could also try it with my students or with my own community as well. Definitely, sir. This is my idea. This is my idea. Thank you, Dr. Apurva, for giving us. So after Dr. Apurva, I have one of my students, Sapna. After that, one of the professor of geography, Dr. Naval Kumar Singh. So Sapna, very quick remarks. A very good evening to everyone present here. Saurav, first of all, very, very congratulations to you, because what you have presented is to the point, and along with that, the topic you have covered, the sustainable development, considering the practices of geofocusm and religious practices. I think it has to be addressed by everyone. We people talk about sustainable development, but we usually follow defined parameters of the global authorities, what they have suggested for to us for the sustainable development. But considering geofocusm, the localization of the word, which I would definitely be considering, the localization practices, the localized practices on which you have on the thing which you have focused on, I think is commendable. And everybody I think these days we people are considering that the local practices are more more focusing on the ecological sustainable practices. So this thing which you have Thank you, Sapna. Thank you. Well done. Well done. Naval sir, अगर आप हैं, so your expert comment.
Yes, good evening to all. This series itself is sustainable. It shows the ideas of sustainability and ecological balance because people are participating from rural areas to urban areas, from even schools to colleges. So the term sustainable and ecology are very, very useful in this lecture. And particularly today lecture was very enlightening because we learned from highland to the lowland, from desert to the Himalaya, and how lakes functions with the culture and society. Because even there was a remark on the religion and culture, but certainly culture is the practices through the nature. So all the religion and cultures are dependent on the natural system, nature, and that's two terms was used here: possibilism and determinism. So human life sustains on the determinism. We try to search out some facilities from the nature that becomes possibilism, but possibilism does not work continuously. It's mostly harm to the nature and then other social system. So I cannot say even finally, so cannot deny to work towards the possibility. Is also a job. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir, for giving. So now, give me 1 or 2 minutes to conclude the whole session. So thank you, sir. Thank you. Okay, so we are late. Generally, we are not late. So sort of, you understand that your talk was really interesting because usually we sat down at 6 o'clock, but we are late by 400 seconds. So no issues. Huh? When that talk are fantastic, so it will. Okay. So the thing is, first of all, Salendra, thank you very much for always be there and as a rescue member of GSTS. So very thankful. I very thankful to you. Sesta, wonderful work, and you got your speaker of the month, and you and your mentor, because the mentor are most important thing in everybody's life. Just sort of told us Dr. Dara, Dr. Apurva, they are the mentors. So as a teacher, we are creators. Got your point? So this is a very when I interact with one of my old professors, so I was sad. So he told me, "You Manish, you are a creator." So just this instinct gives me to create so many things, and that for creation, this is the platform GSTS, and I'm very proud that people are joining from the Jammu to the remote village, as Dr. Sanjay told, the remote village of other parts of India also. This is the parameter of sustainable development. Just Nawal sir reiterated the same thing. And the star of the day, sort of, we interacted 3 times in during the interaction, and I'm very thankful to Rabi also, who push you to give your ideas through this platform. And Dr. Apurva is very right that be it English honors, be it like electronics, the way we produce our idea, this is the most important thing. हम उसको काफी क्लिष्ट कर देते हैं. We must be very amicable. And language is a communication. जो भाषा होती है वो communication का माध्यम होना चाहिए. So, and Saurabh did the same thing. Saurabh, thank you very much for giving your ideas on this platform. Are kindly push to your friend also from the University of Haryana how Sure. he how he will give his presentation in the coming days. Okay, thank you all my graduate
postgraduate, MPhil, and PhD students for joining. And I saw so many professors and the teachers are across the Delhi University and outside the Delhi University also. So this is the power of online platform. So kindly spread this message that the platform is existing. Come and speak with your हार्ट एंड हार्ट्स बोलते हैं ना, दिल से और दिमाग से दोनों बोलिए. और थैंक यू गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर संजय. सौरभ ने हिमाचल और मंडी को कनेक्ट किया, संजय ने रेस्ट ऑफ द इंडिया को कनेक्ट किया. सो दिस इज अ कनेक्शन बिटवीन द स्पीकर and between the guest of honor. Thank you, Dr. Sanjay, for coming and blessing us to this way. And now it's time to wrap up. Thank you, everyone, from my core of my heart. So we'll meet next Sunday with another coral reef, because I'm not the geography background, but coral reef, I think so. And one last thing, because my background is history, the folklore was the primary source of the history also. So with this remark, we should leave. We are too late. Usually we are not late. So Mr. President, former President, can we leave? Or Prime Minister, can we leave? Talent, can we leave? Yes, sir. Thank you so much, Okay, everyone. okay. Thank you.